वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिक एकेडमी पर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर शुभम पराशर। तो स्टूडेंट्स, हमने कल क्या देखा था थर्मोडायनेमिक्स में। बेसिकली वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंटरेक्शन इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस भी हमने कल देख ली थी। तो चलिए आज कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रॉब्लम गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम फर्स्ट. The problem is like that a football was inflated to a gauge pressure of 1 bar. Means there is a football and it is inflated to a gauge pressure of 1 bar. Okay. When the ambient temperature is 15 degrees Celsius, the football, like this, suppose this is a football. This is football. Football. Okay. Football. This is ambient temperature. It is 15 degrees Celsius. And its gauge pressure is 1 bar. It is inflated. Okay friends, its gauge pressure is 1 bar. When the next game started, the air temperature of stadium is 5 degrees Celsius. Now, suppose this is 1. When the next day, T infinity 2, next day, the environment temperature is, outside temperature is 5 degrees Celsius. Stadium temperature, environment temperature is 5 degrees Celsius. Okay. Now volume of the football remains same. Means volume remains same. V1 is equal to V2. It is never changing. Volume remains constant. Okay. It is given as what? V is equal to 2500 centimeter cube. Okay. Now find the amount of net heat lost by air in the football. What? Amount of net heat lost by air in the football means. What are they asking? Friends, what are they asking? Actually, they are basically what they are asking. Friends, initially, when pressure of 1 bar is inserted to it, to football, they said inflated to a gauge pressure of 1 bar when the ambient temperature is 15 degrees Celsius. When the temperature is 15 degrees Celsius and pressure is 1 bar, the air, what is inflated? Air is inflated into the football. फुटबॉल के अंदर हवा भरी गई, इन्फ्लेटेड हवा भरी गई फुटबॉल के अंदर। किस पे? 1 बार प्रेशर और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है अगले दिन जब गेम शुरू हुई, व्हेन नेक्स्ट डे द गेम स्टार्टेड, उस समय एनवायरमेंट का टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। क्या था आउटसाइड टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स। आउटसाइड टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ वो बोलता है कि व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय एयर इन द फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर जो एयर है, दिस इज फुटबॉल एयर। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ फुटबॉल एयर। फुटबॉल इनसाइड द एयर, इनसाइड द फुटबॉल। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इनसाइड द फुटबॉल। नाउ ये बोलता है कि इतनी हीट लॉस करी इन मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द फुटबॉल के अंदर से। मींस इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस अभी। और इसका प्रेशर कितना है? गेज प्रेशर 1 बार है फ्रेंड्स। अभी बोलता है कि कितनी हीट लॉस करी। हीट ट्रांसफर कब होगा फ्रेंड्स? हीट ट्रांसफर का फिनोमिनन कब होता है? व्हाट इज द वेयर हीट इंटरेक्शंस हैपेंस? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। We already covered the topic heat interaction when there is a temperature difference, friends. So what happened there? Inside temperature is 15 degrees Celsius and outside temperature is now 5 degrees Celsius. So there is a heat loss from inside to outside, from inside football to outside. There is a heat transfer. Let us say Q is heat transfer. Friend, this is the heat transfer. What they will ask in question. Find out the value of this heat transfer. This heat transfer, how we can find out? Because there is a temperature difference, there is a heat transfer and it crosses the boundary also. This is the boundary of football. So firstly tell me which type of process it is. Which type of process, friends? Which type of process it is? Since volume remains constant, they said clearly volume of football remains constant, so it is a constant volume process. Are you getting my point? It is a
constant volume process, constant volume process, constant volume process. So the enthalpy which can be find out is for what? It is what? QV, constant volume enthalpy, constant volume heat transfer, constant volume heat transfer. Now how we can find out this? Let us understand this first. Friends, we know first of all, this is what? Football, and football have some volume given as V1. So football have many molecules. They have individual some mass. So total mass of football is what? We can find out the basic relation of ideal gas. Why it is ideal gas? Because they said what? Air inside, air. They mentioning the term air. Air is what? Air is a ideal gas. Air is a ideal gas. For ideal gas, we know PV is equal to MRT, friends. So initially what will happen? P1, V1 is equal to MRT1. We know the value of P1 initially. We know the value of T1. We know the value of V1. So we can find out easily the mass of this football. We can easily find out the mass of football. Now remember one point here. The P1 when you putting in this equation, the pressure should be absolute. What? The pressure should be absolute. What is the given in question? The pressure in gauge. Pressure is in gauge. So first convert the pressure into absolute. What is the absolute pressure? Formula absolute pressure. Pressure absolute is equal to what? Atmospheric pressure plus gauge pressure. GUH, gauge pressure. What is atmospheric pressure? We know the atmospheric pressure, general formula of atmospheric pressure. What is the value? 1.01325 bar plus 1. Then the answer is 2.01325 bar. This is the pressure. Now putting here the value P1, putting here in this equation, putting the value what? 2.01325 into 10 to the power 5. Because it is in bar, now convert it into joule or Newton meter. Multiply by volume of V1. V1 is what? 2500 centimeter cube, friends. Centimeter cube. Convert it into meter cube. We are basically doing all problems into SI unit. First convert all into SI unit. It is easily solve the problem into 2500 into 10 to the power what? -6 divided by what? R. What is the value of R for air? We already know what is the value of R for air. It is a standard value. What? Because R from where R we can find out? R bar is what? Universal gas constant into molecular mass. Molecular mass of what? Air is what? 29. It is a standard. Molecular mass of air is 29. Then we put here 8.314. It is standard formula for it. Divided by 29. We get what? 0.287. What? Kilojoule per kg Kelvin. Kilojoule per kg Kelvin. Just putting the value of their here into 287. It is in kilojoule. If we put here in joule 287, multiply by what? T1. T1 also in Kelvin. T1 also in Kelvin, friends. It is 15 degrees Celsius. 15 plus 273. How much? 283, 288. This is what? Mass. Then we will get the value of mass. Okay, friends, we will get the value of mass. How much value you are getting? Just calculate the value of mass. I am writing here. Just calculate the value of mass. It is nearly 5.88 into 10 to the power -3 kg. This is the value of mass. Now what will happen? We know the mass of this football. Now what will happen, friends? Just apply a formula. We know when we doing the heat interaction analysis, I said you, if the gas is ideal, apply anywhere in the process, the constant volume process. Two conditions are basically there. One is constant volume process, and the second is one is ideal gas. If the both conditions are satisfied, can we use the formula here? Which formula, friends? This formula, QV is equal to MCV T2 minus T1. This is formula for what? This is formula for heat interaction. This is formula for what? Heat lost by air.
This is formula for what? Heat lost by air. First of all, let us understand this. This is our system. This is our system. This football is our system. The system is losing heat. Heat is coming from the system. The system is losing heat. But what sign convention is there? Is it negative or not? When we supply heat to the system, it is taken as positive. When we taken heat from the system, it is taken as negative. So this QV must be negative. Just put the values here. Value of CV for air is what? 0.718. M की value we are already getting. Mass, this CV will know. T2 minus T1 temperature difference. Just put here and we get the value of enthalpy. It is negative. Why it is negative? It is negative because system losing the heat. Heat lost निकालनी है हमें. We find out the amount of heat lost, friends. Amount of heat lost. It is in negative. What is the value of this? 43.7 kilojoule. This is the answer. Hope you enjoy this question. It is a very basic question. Okay, friends. It is a very basic question. It is actually a gate question. It is asked in gate question. This is a gate question. Now take the another part of this question. This is second part. Gauge pressure of air in the football of stadium. Now let's find out this. Now we know that this is a constant volume process. Since the volume remains constant, for a constant volume process, what will happen for a constant volume process? For a constant volume process, we know T1, we know relation T1 by T1 is equal to P2 by T2. T1 by V1 is equal to P2 by T2. From here we can find out the P2. Condition is what? When putting the value of P1, it is absolute. Putting the value of absolute value here. What is the absolute value? We know 2.0135 multiplied by what? T2. What is the value of T2? 5 degrees Celsius मतलब 278 degrees Celsius divided by this is what? 288 and we get what? 0.93 bar. This is our answer. Friends, this is our answer. So this is all about basic question. Now try another question. So students, now discuss let's second problem. First we understand what is the problem. So a system undergoes three quasi-static processes as shown in figure 1 to 2 isobaric, 2 to 3 is polytropic, 3 to 1 is isothermal process as shown in figure. Find out the value of what? V2. At this point find out the value. So what we are given, हमने बस given क्या किया है? P1 P2 पता है अपने को 4 बार है इन दोनों स्टेट्स का. ओके, क्यों? बिकॉज इट्स आइसोबैरिक, द प्रेशर रिमेंस सेम. ओके, P3 का प्रेशर हमें 1 बार दिया, हमें पता है. वॉल्यूम V1 हमें गिवन है कि 1 मीटर क्यूब है, हमें V2 निकालना है और V3 हमें नहीं पता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं? How to approach this type of questions? Actually, in these type of questions, when you have to find out the value of V2 at particular position, P2, temperature, and heat, etc. What is so such type of problem? Basically, we use the equation of processes. Let us say this is 3 to 1 is isothermal process, and the relation for isothermal process we already know what? T is equal to MRT. T is equal to constant. This is the relation because isothermal process is what temperature remains constant. So PV is constant. So here we can find out what P1 V1 must be equal to P3 V3. At these two stages, the relation is valid because the process is what? Isothermal process between two stages. Okay, then from here we can find out V3. What is value of V3? We have already given P1. What is value of P1? 4 bar. What is value of V1? 1 meter cube. Divided by what is value of P3? 1 meter cube. It is 4 meter cube. Now we know the value of V3, 4 meter cube. Now how we can find out the value of V2? Same funda, friends, same funda. Just apply the equation of polytropic process here between the two states P2 and P3. This is what process? Polytropic process. Polytropic index is given as equal to 1.4. Then what's the issue? No issue. Then P2 की power 1.4 must be equal to P3 की power 1.4.
all things B3 given, B3 given, B2 given, then we can easily find out the value of B2. Just try to solve it. Always remember, when you apply in this equation, the P2 is always absolute. If J is mentioned in question, then convert it into absolute. All terms when we put in this formula are in absolute. Just now, what is the value of B2? Find. Tell me the value of B2. Tell me the value of V2, friends. The V2 comes out to be 1.48 meter cube. This is our answer. This is our first part is solved. This is our answer. Now what is second part? Let's understand the second part also. Net heat interaction for a cycle. What? For a cycle. For a cycle, not a process, friends. For a cycle, not a process. Means this is a cyclic process. For a cycle, we can find out the net heat interaction, friends. Okay. Now we know according to first law. But according to first law में क्या बताता है, friends? हमने इस चीज को देखा है according to first law. But net heat interaction must be equal to net work interaction. We are getting out this concept. Net heat interaction is equal to work interaction for a cycle. For a cycle, this is valid for a cycle. Friends, if you अगर आप हमेशा कंडीशंस को याद करोगे कि कौन सा फॉर्मूला किन कंडीशंस में एप्लीकेबल है, देन यू आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी. आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता. तो हमेशा जो ध्यान देने वाली बातें हैं ना, वो है कि कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, इस कंडीशन के ऊपर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है. अगर आपको ये चीज पता लग गया और अप्लाई करना आ गया, देन कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फ्रेंड्स. ओके, सो वी नो दिस कंसेप्ट. नाउ इस क्वेश्चन को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं. वी अप्रोच दिस क्वेश्चन इनटू टू टाइप्स. ओके, हाउ द अप्रोचिंग इज लाइक दैट. दिस इज बट वी हैव फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस 1 to 2. दिस इज व्हाट constant pressure process. Then first find out the heat transfer interaction in this process, then heat interaction in this process, then heat interaction in this process. This is one case. Now the second case is what we have to find out the work interaction in this process, then work interaction in this process, then work interaction in this process. Actually, the second case work interaction are much easier than first case. Why? Because we know one concept, area under the curve is what? But this area cannot be find out by the geometry, because the geometry is somewhat different. Not triangle, not rectangle. It is a little bit different. So we are not able to solve it. Then how we approach to this question? Our approach is like that. W net work transfer must be equal to what? Q net. This is the first law. Is equal to W of 1 to 2 plus W of 2 to 3 plus W of 3 to 1. We approach this like that. Now W of 1 to 1, W of 1 to 2, but it is a constant pressure process, friends. 1 to 2 is constant pressure process, so we can find out P V2 minus V1. Pressure is constant, P1 P2 is constant. V2 minus V1, we have V2, we have V1. Just put here and get the answer. Just put here, friends, and get the answer. Okay, we have value of V2. We have other value also. Just put here and get the value of W12. What is the value? Just try to solve it. What is the value of W12? Just put here and get the value of W12. Similarly from 2 to 3 process, it is what? Polytropic process. And work done for a polytropic process is what? P2 minus P3, V3 upon n minus 1. What is n? N is given like 1.4. N is 1.4. Just put here and solve it. Now W3 to 1. 3 to 1 is what? It is what? Isothermal process. And the value of formula for isothermal process is what? We already know. What? P3 V3. This P3 V3 log of what? Log of V1 by log of V1 by V3. This is value for, this is formula for work done of P3. Just solve it. Now, what is W net? W net is what? W1 plus W2 plus W3. And what is the answer? The answer comes out to be, friends,
nearly 125.88 kilojoule. You can solve it. The answer is 125.88 kilojoule. So it is one of good problem for the students. It is also a good problem. So try to solve as much problems as you can. जितनी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स उतनी सोल्व कीजिए ताकि आपकी कमांड बन जाए सब्जेक्ट के ऊपर. यू नो द बेसिक, you know the theory, you know the how the process is going on. Just try to applicate it. उसकी एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन कहाँ करेगी? प्रॉब्लम्स के ऊपर. प्रॉब्लम्स के ऊपर उसको आप एप्लीकेशन उसकी करनी शुरू कर दीजिए. Then you will feel the subject is easy. Okay friends, you feel subject is easy. Now let's move further. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. Now start our topic. Starting our topic. Okay. So हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने फ्री एक्सपेंशन तक पढ़ चुके थे. तो आगे बात करते हैं. Our next topic is what? एक टर्म मैंने आपको बोली थी कि फ्लो वर्क क्या होता है. तो पहले बात कर लेते हैं फ्लो वर्क के बारे में. What is flow work? फ्लो वर्क बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क या फिर फ्लो एनर्जी. फ्रेंड्स, फ्लो वर्क इज analogous to our PDB work. How? Let's understand this. Suppose this is a open system. Actually, flow work is generally used for open systems. Flow work comes in picture when the system is open. Open system means we are going to discuss very basic of the thermodynamics. What is open system? Both mass interaction, heat interaction, both can take place. Means mass comes out to the system, mass comes into the system, and mass also comes out of the system. It is an open flow system. Okay, friends. Now, what is basically flow work? होता क्या है फ्लो वर्क? Flow work this is our control volume, friends. Let us say this is our control volume, or this is our system, friends. This is our system, friends. Okay. तो कंट्रोल वॉल्यूम बेसिक फ्लो वर्क होता है क्या? बेसिकली फ्लो वर्क, अब सपोज करो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. यहाँ से ना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो है अंदर इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है. आपको उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है. बट आपने एक स्मॉल टुकड़ा ले लिया फ्लूइड का. इट इज अ स्मॉल टुकड़ा फ्लूइड का जिसका मास कितना है? dm1. जिसका वॉल्यूम कितना है? dv1. ओके, dm1 dv1. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये जो बंच है फ्लूइड का, ये जो बंच है, छोटा सा जो टुकड़ा है, हमने जो एलिमेंटल फ्लूइड ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है फ्रेंड. इसको कोई फोर्स चाहिए कि ये फ्लो कर जाए इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम और आवर सिस्टम. तो कोई फोर्स चाहिए इसको कि ये अंदर की तरफ मूव कर जाए. तो जब इसको कोई फोर्स मिलेगी फ्रेंड्स, इसको, तो ये कुछ वर्क डन करेगा. उस वर्क डन को बोलते हैं हम फ्लो वर्क. उस वर्क डन को क्या बोलते हैं? फ्लो वर्क. इसको कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पे एक इमेजिनरी पिस्टन है. दिस इज अवर पिस्टन, इमेजिनरी पिस्टन. नाउ this imaginary piston, but imaginary piston doing force are on the piston on right side, so that this can try to move this into inside, so what will happen basically there? This is leaving one. Okay, so what will happen basically there? So what will happen? What is value of dw? A small work for this to be inserted here. What is value of dw? D1 pressure which can be inserted here. There is a pressure here, D1. The force is in terms of pressure. There are small bunch molecules of what fluids. These molecules are trying to force this piston here in this direction, trying to force this piston and this direction. Their resultant is what? Their resultant is pressure P1 into what? How much distance they want to displace? What? dV1.
But dV1, it is somewhat similar to our PdV work or not? It is somewhat similar to our PdV work or not? Yes, why not? It is similar to our PdV work. It is inside work. When the fluid bunches try to come inside the system. This is our system. Okay, when the fluid bunches comes straight inside the system. Now what will happen? We know that what dV1 is equal to what? dV1 is equal to what? V1 into dm1. How it is V1 equal to? We know what is mass. What is the formula for a mass? For a small elemental mass. This is the elemental mass. What is the formula for an elemental mass? What is the formula for an elemental mass? The formula for an elemental mass is what? dV1 by V. dV1 by V. This is the formula for an elemental mass. Right? Mass balance, just mass balance it is. Okay. So just put here. Now what will happen? Delta W is what? V1 into dm1. V1 into dm1. Now flow work per unit mass is what? Flow work per unit mass is what? Delta W upon dm1. What? V1. This is what? Flow work per unit mass. This is flow work per unit mass. This V is total volume. This small v represents specific volume, any per unit mass. Per unit mass into mass is what? dV1. This formula is from coming there. Specific volume. Okay, friends. Similarly, here we can take a bunch of fluid, a small mass dm2. Let us say it is displaced by dv2. Here is the piston. Now the fluid particles try to push out the system so that this bunch of particles try to move out from the system. Now similarly from here, what is the value of what? E2 into V2. This is flow work outside. This is flow work for inside. Basically, flow work is nothing. It is a form of energy. Now, when the fluid try to inside in the system, then there is some energy. There is some energy which is tried to force out the system, the fluid into the system. It is nothing but we can say flow work. This is all about the flow work, friends. Okay, hope you understand it. तो स्टूडेंट्स चलिए अब कुछ और बात करते हैं, कुछ एनालिसिस करके देखते हैं हम क्या फाइंड आउट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो सपोज एक ओपन सिस्टम है लाइक टरबाइन. दिस इज अवर टरबाइन के एक ओपन सिस्टम. दिस इज अवर टरबाइन के एक ओपन सिस्टम है. केवल फ्लूइड इसके साथ इससे निकल भी रहा है आउट एंड फ्लूइड कैन भी इन भी हो रहा है इन. When high pressure fluid comes in the turbine and what? The collision with the turbine blades and gives what? Work output. क्या देगा हमें? वर्क आउटपुट देगा. टरबाइन के साथ साथ हमारे स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है? जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है. तो हमें क्या मिला? वर्क आउटपुट मिला. और लो प्रेशर पे होने के बाद ये आउट निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा टरबाइन से. नाउ दोस्तों देखो, बेसिकली टू टाइप ऑफ अप्रोचेस, दो अप्रोच होती हैं स्टडी करने की. क्या अप्रोच होती है? पहली मान लो एक सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड. दिस इज द फ्लूइड. हमने कोई छोटा सा सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड ले लिया, ठीक है. अब ये फ्लूइड का मास, बंच ऑफ फ्लूइड्स, छोटा सा मास, लेट अस से dm1, ठीक है. अब ये क्या करेगा? एक सर्टेन मास ये घूमेगा, फ्लूइड के अंदर से जाएगा, फ्लूइड के अंदर से होते वर्क आउटपुट निकालेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. तो जब हम सिस्टम के एनालिसिस करें, दिस इज आवर सिस्टम. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर सिस्टम. This small fluid mass is our system. This is certain fluid mass is our system. Okay, now what will happen? We can, जब ये fluid particle यहां पहुंचेगा तब हम देखेंगे, जब ये fluid particle यहां पहुंचेगा तो ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस है टरबाइन की. टरबाइन इज कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस. टरबाइन के अंदर क्या होगा? एक्सपैंड होगा. तो हमने क्या किया? इस फ्लूइड को एनालाइज किया. कब? डिफरेंट
कब? इंस्टेंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे हमने इसको एनालाइज किया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे हमने इसको एनालाइज किया। इसको बोल देते हैं हम, ये क्या हमने कौन सी अप्रोच यूज की? सिस्टम अप्रोच। एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, उसको एनालाइज किया हमने, वो क्या हो गया? सिस्टम अप्रोच। अब इसको एनालाइज करने में हमें क्या पता चला? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू, डी इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज पिक्चर में आएंगी? भाई सिस्टम है, किसी हाइट के ऊपर भी है, बॉटम से, दिस इज बॉटम, किसी हाइट पे भी और घूम भी रहा है। मीन्स डी के अंदर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? डी के अंदर क्या आ जाएगा? डी के अंदर बहुत डी यू इंटरनल एनर्जी हुई किसके पास कुछ, प्लस डी के काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी, प्लस डी पी पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आ जाएगी। तो ये थी एनर्जीज जो कि आ जाएगी पिक्चर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा? डी के इज इक्वल टू डी यू प्लस डी के प्लस डी पी प्लस डी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होगा डब्ल्यू के अंदर? भाई ये मूव कर रहा है तो डब्ल्यू के अंदर दो वर्क होंगे, एक तो होगा फ्लो वर्क, एक तो होगा फ्लो वर्क, दूसरा कौन सा वर्क होगा दोस्तों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, फ्लो वर्क आएगा पिक्चर में। जैसे हमने अभी बात की फ्लो एनर्जी, वो भी वन टाइप ऑफ वर्क है, फ्लो वर्क आएगा पिक्चर में। दूसरा वर्क कौन सा आएगा? क्या कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है सिस्टम? सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही है, सिस्टम खुद मूव कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर से कोई क्रॉसिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मतलब बाउंड्री वर्क नहीं आएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा वर्क? दूसरा वर्क कौन सा आ जाएगा? ये जाने के बाद किससे टकरा रहा है? ब्लेड से। ब्लेड से टकराने के बाद हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट, वर्क आउटपुट, मतलब दूसरा आ गया शाफ्ट वर्क, दूसरा वर्क आ गया शाफ्ट वर्क। तो जिस तरह की अगर हम इस तरह से एनालॉगस होकर सिस्टम को फोकस करके एनालिसिस करेंगे इस टरबाइन के ऊपर, तो वो क्या बोल देंगे? उस अप्रोच को हम बोल देंगे सिस्टम अप्रोच। ये समवट सिमिलर है किस अप्रोच से दोस्तों? कुछ याद है इस तरह की अप्रोच हमने देखी है? लैग्रेंजियन अप्रोच। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं एक अप्रोच, लैग्रेंजियन अप्रोच। ये समवट सिमिलर है उसके अंदर भी हम एक पार्टिकल को स्टडी करते हैं, वो कहां घूमता है, क्या क्या करता है, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो इसमें भी यही कर रहे हैं, एक सिस्टम हमने ले लिया, एक मास ले लिया सिस्टम का, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास, उस मास को हम देख रहे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड अप्रोच आती है फ्रेंड्स, कौन सी? लेट्स बात करते हैं अभी। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, कंट्रोल वॉल्यूम होता क्या है? अब हमने इसको सिस्टम माना, सिस्टम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं। हमने फिक्स रीजन दे दिया, भाई ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, हम जो कुछ स्टडी करेंगे फिक्स वॉल्यूम के अंदर करेंगे, इसके बाद हम कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे। अब ये क्या हुआ? फ्लूइड अंदर आ रहा है, फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका जो रीजन है इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट रिमेन्स फिक्स्ड। सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम क्या फिक्स नहीं है? सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती है, प्रॉपर्टीज नहीं वेरी, पोजीशन टू पोजीशन प्रॉपर्टीज वेरी करेगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है, प्रेशर, टेम्परेचर, हर चीज वेरी करेगा, प्रॉपर्टीज वेरी। लेकिन इस फिक्स रीजन के अंदर वी से प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ए फिक्स रीजन, इसके अंदर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी। तो इससे क्या हुआ? हमारी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, एनालिसिस इजी हो गई। तो हम बेसिकली यूज करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच फॉर ओपन सिस्टम्स। इट इज ए ओपन सिस्टम, मास ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है इट इज ए कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच फ्रेंड्स। नाउ आगे बात करते हैं कुछ। ये तो हमने जस्ट एक इंफॉर्मेशन ली है कि किस तरह की अप्रोचेज होती है। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों, एक होती है स्टेडी फ्लो प्रोसेस। व्हाट इज स्टेडी फ्लो प्रोसेस? होती क्या स्टेडी फ्लो? स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी का मीनिंग होता है नो चेंजिंग विथ टाइम। कि चीजें समय के साथ चेंज नहीं हो रही, उस चीज कंडीशन को हम बोल देते हैं स्टेडी। और जब चेंज हो रही है तब क्या बोल देंगे? वी कैन से अनस्टेडी और ट्रांजिएंट, अनस्टेडी और ट्रांजिएंट, वी कैन से अनस्टेडी और ट्रांजिएंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ हमने चलो देख लिया, स्टडी के बारे में जान लिया। नाउ स्टडी फ्लो प्रोसेस होती क्या है? स्टडी फ्लो प्रोसेस फ्रेंड्स, इन रियल लाइफ देयर इज प्रोसेसेस, मतलब जो टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रही है और रीजन के साथ साथ भी चेंज हो रही है। जैसे कि सपोज दिस इज अवर सिस्टम,
दिस इज अवर ओपन सिस्टम। ये क्या एक ओपन डिवाइस है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या एक ओपन डिवाइस है और हमारा कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो गया, दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स, स्टेडी फ्लो प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ना तो कुछ चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब वॉल्यूम, ये क्या प्रॉपर्टीज है, ना तो कुछ चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर किसी फिक्स रीजन पे, दिस इज अ फिक्स रीजन। ना तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, क्या इस फिक्स रीजन के अंदर ना ही समय के साथ चेंज आ रहा है, ना तो टाइम के साथ चेंज आ रहा है, ना ही इस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से चेंज आ रहा है किसी तरह का, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस हमने देख ली क्या होती है। तो अब बात करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो क्या होती है। एक टर्म आती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, because in this we deal with basically mechanical energies, these all are mechanical energies। ये होती क्या है फ्रेंड्स, ये होती क्या है, दिस इज अवर सेक्शन 1 दिस इज अवर सेक्शन 2 ओके, दिस इज अवर सेक्शन 2 दो सेक्शन मान लिया हमने 1 एंड 2। नाउ इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्टेडी फ्लो, मीन्स स्टेडी फ्लो एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, एट ए पर्टिकुलर फिक्स्ड रीजन, चीजें चेंज नहीं होगी, ना तो समय के साथ ना ही पोजीशन के साथ, ना तो समय के साथ ना ही पोजीशन के साथ, ना तो टाइम के साथ ना ही पोजीशन के साथ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताएगा कि भाई जितना फ्लूइड यहां से, जितना मास फ्लूइड का यहां से एंटर करेगा उतना ही मास फ्लूइड का यहां से बाहर निकलेगा। एम आउट एम इन मीन्स मास एंटरिंग इन दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास आउटिंग द कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज अवर कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली फॉर ए स्टेडी फ्लो, फॉर ए स्टेडी फ्लो। ओके, तो होता क्या है मास, रो ए V1 इज इक्वल टू रो ए V2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 होता क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 होता क्या है। रो इज ए प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगी भाई। किस केस में, ये भी फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन यहां पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड के साथ, तो क्या होगी, चेंज होगी, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ओके, A1 V1 A2 V2, तो दिस इज द रिलेशन, ये हमारी मदद करेगा जब हमें किसी कंडीशन के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, बात की एरिया निकालना है या फिर कुछ भी निकालना है। कुछ कंडीशंस गिवन होंगे, कुछ नहीं होगी, तो हमें निकालना है। ओके, सेकंड क्या होती है, सेकंड क्या होती है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर किसके लिए, स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो के लिए। अब मान लेते हैं क्या कि कुछ मास एंटर कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या है, एनर्जी क्या है, U1 है, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, उसका प्रेशर P1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, उसके पास क्या है, एंथैल्पी H1 है, और जब वो निकल रहा है बाहर तो उसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, उसके पास प्रेशर P2 है, उसका टेम्परेचर T2 है, उसकी एंथैल्पी H2 है, और साथ में क्या दे रहा है फ्रेंड्स, साथ में क्या दे रहा है, एक वर्क आउटपुट भी दे रहा है, वर्क आउटपुट भी दे रहा है, वर्क आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है, सॉरी वर्क आउटपुट दे नहीं रहा। मान लेते हैं कि कोई शॉर्ट वर्क भी आ रहा है, किसी तरह का कोई शॉर्ट वर्क भी आ रहा है, सपोज हम यूज कर रहे हैं स्टीरर, स्टीरर हम यूज कर रहे हैं, तो स्टीरर को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, तो स्टीरर वर्क भी आएगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं हमने कोई हीट भी सप्लाई करी, क्या हुआ, हमने क्या करा, इस कंट्रोल वॉल्यूम को हीट भी सप्लाई कर दी। ओके, तो अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी कि जितनी एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउटिंग। जितनी एनर्जी एंटर करेगी उतनी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ये खा थोड़ी जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी एंटरिंग
एंटरिंग इज इक्वल टू एनर्जी आउटरिंग। तो एंटरिंग पे क्या होगी, हमें हमारे को पता है क्या होगा, एक तो एंथैल्पी होगी भाई H1 प्लस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो V1 स्क्वायर बाय 2, ओके, प्लस उसके बाद क्या होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी तो G Z1, Z1 कहां से आ गया, दिस इज Z1, Z टर्म से Z1, हाइट दिस इज Z2, Z टर्म से कितनी दूरी पे Z2, G Z1, प्लस साथ में क्या होगा, हमने क्या किया, बाहर से एक और एनर्जी सप्लाई करी, क्या हुआ, बाहर से एक और एनर्जी सप्लाई करी, क्या हुआ, ठीक है, और क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W वर्क आउटपुट, जो हमने यहां से प्रोवाइड करा इसको, जो वर्क आउटपुट हमने इसको प्रोवाइड करा, ओके। तो वर्क इनटू द सिस्टम आया तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, तो दिस इक्वेशन इज व्हाट, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर 1 kg मास। हमने इसको मास से मल्टीप्लाई नहीं करी, इट इज फॉर 1 kg, इफ मास इज गिवन जस्ट मल्टीप्लाई मास टू द होल टर्म्स, ओके फ्रेंड्स। नाउ एंथैल्पी कहां से आ गई यहाँ पे भाई, इसके पास ये एंथैल्पी टर्म आती कहां से, अपने को पता है एंथैल्पी आती कहां से, H1 समवट होता क्या है, अब देखो फ्रेंड्स, H1 होता क्या समवट, H1 कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक तो उसके पास इंटरनल एनर्जी, दूसरी उसके पास क्या होगा, U प्लस पीवी, H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पीवी, व्हाट इज पीवी, पीवी इज फ्लो वर्क, ऐसा नहीं है ऊपर सिस्टम है तो यहाँ पे फ्लो वर्क भी तो कंसिडरेशन में रहेगा, U इज इंटरनल एनर्जी, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया कि ये एंथैल्पी, ये क्या है, एंथैल्पी है, तो हमारे पास निकल गया क्या है, दिस इज अवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन इज क्या, जनरल इक्वेशन, इट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, पंप, टरबाइन, और कौन सा होता है अपना बॉयलर, हीट एक्सचेंजर्स, और कौन से होते हैं, नोजल, डिफ्यूजर्स, दे आर ऑल ओपन सिस्टम्स, तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो हम जब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि बताओ वर्क आउटपुट कितना होगा या कुछ भी गिवन होगा, तो हम डायरेक्टली ओपन सिस्टम के लिए क्या लगा सकते हैं, वी डायरेक्टली यूज दिस एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम्स, दिस इज बेसिकली व्हाट, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स। ये कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस किया हमने फ्रेंड्स, हमने शुरुआत में क्लोज सिस्टम एनालिसिस की थी, दिस इज व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, नाउ इसको हम लगा के देखते हैं 2-4 स्टैंडर्ड जगह पे, केसेस कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं केसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला केस मान लेते हैं हम, कौन सा, नोजल एंड डिफ्यूजर, नोजल, तो नोजल कैसे होती है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, दिस इज अ नोजल, दिस इज 1 से, दिस इज 2, दिस इज एंटरिंग, दिस इज आउटरिंग, दिस इज ए नोजल, क्या ये नोजल है। तो नोजल पे हो क्या रहा है बेसिकली, अजम्पशंस क्या क्या है नोजल के पास, नोजल के पास क्या क्या कंडीशंस होती है फ्रेंड्स। पहली तो अजम्पशन क्या है कि स्टेडी फ्लो है, दूसरी अजम्पशन क्या है, दूसरी अजम्पशन क्या है फ्रेंड्स बताइए आप, कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है इसकी, ये किसी हाइट पे नहीं है, एटम पे रखी हुई है। थर्ड अजम्पशन हमने क्या मानी फ्रेंड्स, थर्ड अजम्पशन हमने कि एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक मींस इंसुलेटेड है नोजल, किसी तरह का इसके अंदर से हीट लॉस नहीं हो रहा नोजल के अंदर से फ्रेंड्स, क्या है, इंसुलेटेड है, किसी तरह का हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। चौथा हमने क्या मान ली, अब दोस्तों फ्लो क्या है, आ रहा है और जा रहा है, फ्लूइड आ रहा है और जा रहा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ वर्क, नो वर्क, कोई वर्क तो हो ही नहीं रहा पे, इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम हमारा क्या है, दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी कि किसी तरह का क्या हो रहा है, ना तो कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, तो वर्क आउटपुट इज 0। तो वी नो द जनरल इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने निकाली थी, वो क्या होती है दोस्तों, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2।
वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, वन रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल पॉइंट एंड टू रिप्रेजेंटिंग द फाइनल पॉइंट, प्लस GZ1 प्लस क्या हो जाता है दोस्तों, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। नाउ दीज आर द assumptions which we have made। जो हमने assumption लिया है उनके आधार पे क्या होगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एडियाबेटिक है तो ये भी 0 हो जाएगा, और क्या होगा फ्रेंड्स, और क्या होगा, व्हाट यू से, व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज ए नोजल, इनिशियली व्हाट विल हैपन, इनिशियली क्या होगा दोस्तों, इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। बाद में नोजल का मतलब क्या होता है, नोजल क्या करती है, एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के एक्सपेंस पे अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। प्रेशर क्या करता है, ड्रॉप करता है 1 to 2 एंड वेलोसिटी इज हाईली ह्यूजली इंक्रीज। इनिशियली समवट V1 is much lesser than V2. V1 is much lesser than V2. So we neglect V1. Let us say V1 nearly 0. We neglect V1. Then what will happen? This is also 0. What is value of V2? H1 minus H2. H1 minus H2 into 2 and under root. This is the relation for outside velocity. Many times they ask in question what is the final velocity. So by assuming these assumptions, we are easily solved. If there is nothing mentioned in question, if they said that there is a heat transfer, then we neglect this assumption. If they said there is a potential energy, then we neglect this assumption. If nothing is mentioned, these assumptions are compulsory. तो हमें ये लेनी है, अगर यदि कुछ मेंशन नहीं है तो फ्रेंड्स सेकंड क्या चीज होती है, एक होता है डिफ्यूजर, सेकंड क्या होता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या होता है भाई, डिफ्यूजर क्या होता है, डिफ्यूजर होता है कुछ इस तरह का, दिस इज 1, दिस इज 2। डिफ्यूजर क्या करता है बेसिकली, डिफ्यूजर वेलोसिटी ड्रॉप करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर ड्रॉप करके वेलोसिटी ड्रॉप करके जो हमें प्रेशर मिलता है मैक्सिमम, तो हम बोल देते हैं वो क्या है, डिफ्यूजर है। इट इज वेलोसिटी रिड्यूसर, बेसिकली वेलोसिटी को कम करता है। ओके, तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगी V1 मच इज लेस देन V2। V1 बहुत ज्यादा होगी वेलोसिटी V2 के कंपैरिजन में। तो बाकी ये सारी असम्पशंस हम डिफ्यूजर में भी ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये आएगा V1 के लिए, V2 तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 2 into H2 minus H1 into this is for relation for what, diffuser. This relation is for diffuser. Now consider the standard other cases of other standard cases हम consider कर लेते हैं। हमने नोजल देख ली, हमने डिफ्यूजर देख लिया, नाउ ट्राई टू गो फॉरवर्ड, और एक दो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं टरबाइन के बारे में, देख लेते हैं टरबाइन, दिस इज टरबाइन। ओके, यहां हम देख लेंगे कंप्रेसर, ओके। तो टरबाइन के अंदर क्या होता है जरा देखते हैं, टरबाइन कैसे होती है, कुछ इस तरह होती है टरबाइन, दिस इज टरबाइन, दिस इज आवर आउटर पॉइंट, दिस इज आवर लेट अस टेक इनर पॉइंट। तो इसके लिए भी हम कुछ असम्पशंस लेंगे, कौन कौन से असम्पशंस लेंगे, असम्पशंस कौन कौन से लेंगे, पहले तो भाई स्टेडी फ्लो है, दूसरी क्या, टरबाइन के अंदर से किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए हमारा। अगर टरबाइन के अंदर से किसी तरह का लॉस होएगा तो वो एकदम टोटल लॉस ही है। हमारा क्या हो रहा है, टरबाइन से हमें मिलेगा क्या, टरबाइन देती है हमें वर्क आउटपुट, हमें ये मिलने वाला है टरबाइन से वर्क आउटपुट मिलने वाला है। तो अगर लॉसेस ज्यादा होंगे तो वर्क आउटपुट कम हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने मान लिया कि एक तो क्या होना चाहिए भाई, एडियाबैटिक को हमने क्या कर दिया, टरबाइन को इंसुलेट कर दिया एडियाबैटिक को। और थर्ड असम्पशन क्या है फ्रेंड्स, और कौन से असम्पशन हम ले सकते हैं, हमने मान लिया कि ये जगह पे रखी हुई है, वी नेग्लेक्ट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। नेग्लेक्ट कर दिया हमने काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सब कुछ हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमें क्या रिलेशन निकला, क्या रिलेशन आएगा दोस्तों, हमें पता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2
plus W. This is 0, this is 0, this is 0, this is 0, this is 0. What is W output? Basically H1 minus H2. It is what? Per unit mass. This formula is for 1 kg mass. If mass is given, just multiply here m. This is the relation. Now what will happen in compressor? Compressor के केस में क्या होगा? Compressor is कैसा होता है compressor दोस्तों? Someone like that. This is 2, this is 1. This is compressor, this is turbine. तो कंप्रेसर के केस में हमें क्या करते हैं? इट इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. ये क्या है? वर्क कंज्यूम करती है. हमें इसको वर्क देना पड़ता है. इससे हमें वर्क मिलता नहीं है, इसको हमें वर्क देना पड़ता है. टरबाइन से हमें वर्क मिलता है. तो इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. वी हैव टू गिव वर्क टू इट. W. हमें क्या इसको वर्क देना पड़ेगा. ओके देन ये assumptions उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है. भाई हम मिनिमम वर्क दे. अगर इसके अंदर से लॉसेज ज्यादा होंगे तो हमें जितना वर्क देना है उससे ज्यादा देना पड़ेगा. तो ये assumptions जो हमने यहाँ लिया ये इसके ऊपर भी वैलिड है. तो यहां से अगर हम इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो क्या निकल के आते हैं? हमारा W इनपुट कितना आएगा? वट कितना आएगा फ्रेंड्स? H2 माइनस H1. कितना आएगा? H2 माइनस H1. इट इज पर यूनिट मास. इट इज पर यूनिट मास. दिस इज फॉर कंप्रेसर केस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Another case. Now a term comes throttling device. What is it? Throttling क्या चीज होती है? Throttling का मतलब क्या होता है? What do you mean by throttling? Basically, throttling means restricted passage. Means restricted passage. मीन्स ए नैरो पैसेज. एक छोटी सी जगह है जहां से फ्लूइड क्रॉस कर रहा है. एकदम से सेकंड फ्लूइड था. एग्जांपल क्या इसका? बेस्ट एग्जांपल क्या है? ओरिफिस. ओरिफिस एग्जांपल क्या है इसका? ओरिफिस मीटर. ओरिफिस मीटर आपने फ्लूइड्स में देखा है या नहीं देखा? दिस इज ए लाइन. यहां पे क्या फ्लो कर रहा है? फ्लो कर रहा है. सडनली क्या होता है? सडनली क्या होता है? हमें ओरिफिस लगा देते हैं. दिस फ्लूइड फ्लो सडनली गोज डाउन. फ्लूइड को यहां से होकर ही गुजरना पड़ेगा. तो ये क्या है? ये क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है. किसके लिए? फ्लूइड के अंदर. फ्लूइड के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस है? तो बेसिकली थ्रोटलिंग का मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो, बिल्कुल नैरो स्पेस हो, बिल्कुल थोड़ा स्पेस हो. ओके. और एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? हैं इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं दोस्तों? कैपिलरी ट्यूब. हम VCRS में, RSC में कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं. This is a throttling device like that. This is a capillary tube. बहुत कम डाया की, नैरो डाया की ट्यूब है जहां से फ्लूइड को गुजरना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा. और क्या हो सकते हैं दोस्तों एग्जांपल? टूटी, घरों की टूटी. प्रैक्टिकल एग्जांपल कहेगा घरों की टूटी. भाई जब तुम टूटी बंद कर देते हो तो क्या है? जब टूटी खोलते हो हल्का सा तो थोड़ा सा पैसेज ही तो मिलता है उसको निकलने के लिए. पानी को, वाटर को फ्लो करने के लिए थोड़ा सा पैसेज ही तो मिलता है. तो हम कह सकते हैं दिस इज ए टूटी. दिस इज 20 लाइक दैट. ओके. तो और क्या सकता है? इसको हम क्या बोलते हैं वैसे? 20 कंडीशन पार्शली ओपन वाल्व. क्या बोलते हैं? पार्शली ओपन वाल्व. तो और क्या हो सकता है दोस्तों एग्जांपल अगर हम कुछ सोचे? पोरस प्लग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. पोरस प्लग. तो चलो ये तो हमने समझ लिया. तो इसकी कंडीशन क्या है? इसके लिए भी हम कुछ अजम्पशंस लेंगे. क्या क्या अजम्पशन हम लेंगे? सबसे पहले अजम्पशन तो भाई स्टेडी फ्लो हो. भाई क्या हो? स्टेडी फ्लो हो. दूसरा मान लेते हैं डेटम पे ही है. क्या है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. नेग्लेक्ट कर दी हमने. तीसरा क्या है? हमने मान लिया कि एडियाबैटिक है सिस्टम. सिस्टम क्या है? एडियाबैटिक है. सिस्टम क्या है? एडियाबैटिक है. और क्या कंडीशन होगी दोस्तों? चौथी कंडीशन बताओ लास्ट. हमने मान लिया कि वर्क आउटपुट भी जीरो है. जस्ट फ्लो ही तो कर रहा है. जस्ट फ्लो ही तो कर रहा है. किसी तरह की बाउंड्री तो नहीं क्रॉस हो रही. वर्क आउटपुट इज जीरो. ये चार कंडीशन हमने ले ली. जब हमने इसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर पुट किया तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या थी?
जब स्टेडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन के अंदर पुट किया तो ये सारी टर्म्स जीरो होगी, ये सारी टर्म्स जीरो होगी, हमें क्या मिला क्या, H1 is equal to H2. H1 is equal to H2. What does it mean? Enthalpy remains constant for a throttling device. थ्रोटलिंग डिवाइस के लिए क्या होती है, एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होती है, एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, किसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। ये क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। क्या है ये, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है फ्रेंड्स, क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। यार ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा सर बार बार रिपीट कर रहा है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार पूछ लेता है कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कौन सी होती है, तो आपको पता नहीं होगा कि उसे कोई थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं वो, तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, तो सोल्व कैसे कर पाओगे आप। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस की, क्या क्या विशेषताएं होती है फ्रेंड्स। पहली तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है एक, दूसरी हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इट इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरी एडियाबैटिक है। चौथी वर्क आउटपुट है, जीरो है। तो ये सारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्रोटलिंग प्रोसेस की, किसकी है, थ्रोटलिंग प्रोसेस की। अब अपने को पता है H1 is equal to H2, तो H1 होता क्या बेसिकली, इसको हम अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, U1 प्लस P1 V1 is equal to U2 प्लस P2 V2। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। समटाइम्स कुछ गिवन होता है इनमें से, इंटरनल एनर्जी हमें गिवन दे देगा, बोल देगा P2 निकाल दो, बाकी वैल्यूज दे देगा, कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। तो ठीक है, हमने क्या कर लिया, केसेस देख लिए, स्टैंडर्ड जो केसेस थे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के जहां जहां एप्लीकेबल है वो हमने देख लिया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने पढ़ ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम क्या करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अनस्टेडी फ्लो की तरफ। अभी तक हमने स्टेडी की तरफ की बात की थी, अब बात करेंगे हम कल के लेक्चर में कि टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंजेस होते हैं। टाइम के साथ साथ अभी हमने बोला कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, अगर होए तो अनस्टेडी में क्या होगा, उसको हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो इफ यू एंजॉयिंग अवर वीडियो, यदि आपको मेरा कोर्स पसंद आ रहा है, आपको इफ यू एंजॉय द कोर्स, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ योर फ्रेंड्स नॉट सब्सक्राइबिंग इट, जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स, your family members who want to learn the thermodynamics from basics. You can refer this lecture, our channel, to your friends, your family, and share to Facebook or other pages so that maximum people can utilize this free education benefit. Okay students, hope you enjoy this video. Thank you.